हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीम यू बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 में क्लास 25। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ये फिगर बना लीजिए आप लोग। ये एस है और इससे एस के थ्रू S1 और S2 से पॉइंट पी पर क्या लाइट पहुंच रहा है। तो लेट अस कंसिडर टू लाइट वेव्स इमिटेड बाय द सोर्स S1 and S2 whose amplitudes are A and B respectively, and Y1 and Y2 the displacements of any particle of the screen due to the corresponding waves at any instant of time t second. Then Y1 equal to A sin omega t and Y2 is B sin omega t plus del, where del is the phase difference between the waves at point and del equal to 2 pi by lambda S2p minus S1p. Del is phase difference between the waves and del equal to 2 pi by lambda into S2p minus S1p. ये फेज डिफरेंस निकाल लें हम लोग। S2p minus S1p into 2 pi by lambda। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। By the principle of superposition of waves, the resultant displacement of the particle is given by y equal to what? Y1 plus Y2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़े थे, जिसमें यह प्रिंसिपल कहता है कि if two or more light waves are traveling along the same straight line, then the resultant displacement of any particle of the medium at any instant of time is equal to the vector sum of the displacements of the particles produced by the components waves at that instant. Then that is y equal to y1 plus y2. Here we know the value of y1 and y2. We will put the value of y1 and y2 in this equation. Then y will be a sin ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो साइन ओमेगा टी प्लस डेल को फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं, क्या हो जाता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल। जो कॉमन होता है वो कॉमन ले लेते हैं, तो वाई विल बी ए प्लस बी कॉस डेल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा साइन डेल कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन 2, पुटिंग ए प्लस बी कॉस डेल इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी साइन डेल इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मान लेते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए प्लस बी कॉस डेल का होल स्क्वायर प्लस बी साइन डेल का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू था, क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो ये मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos del plus b square cos del plus b square sin del। cos square del plus b sin square del will be equal to 1। therefore r equal to a square plus 2ab cos del plus b square। then r equal to a square plus 2ab cos del plus b square to the power half। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। putting values from equation 3 and 4 in equation 2 we get इक्वेशन 3 एंड 4 का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या होता है? आर कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी। y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। देन y इक्वल टू व्हाट? आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, फॉर्मूला पे। ऑलराइट, तो इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। It is clear from above that the principle in the resultant wave also vibrates in SHM, simple harmonic motion, whose frequency is equal to the frequency of component waves and its amplitude is r. Since the intensity at any point of the medium is equal to the square of the amplitude of vibration of the particle at that point, hence the intensity at point P is given by I equal to r square. Therefore, I equal to a square plus 2ab cos del plus b square। इक्वेशन 7 इसको मान लेते हैं। आई इक्वल टू आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आई रख देते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल प्लस बी स्क्वायर। इट इज क्लियर फ्रॉम एबव एक्सप्रेशन दैट द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी will be maximum and minimum when the values of cos del is the maximum and minimum respectively. Conditions for the maximum light intensities, that is for the bright fringes at point P। तो एट पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज का प्राप्त होगा, या फिर जो मैक्सिमम लाइट लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस डेल का वैल्यू क्या होगा? +1 होगा। जब
कॉस डेल का वैल्यू +1 होता है तो डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई, वेयर n इज 0 to 0 1 2 3 सो ऑन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 8 वी हैव 8 में देखिए डेल का वैल्यू क्या है 2n पाई एंड डेल इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू s2p माइनस s1p। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 8 वी हैव 2 पाई बाय लेमडा इंटू s2p माइनस s1p इक्वल टू 2n पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, therefore s2p minus s1p equal to 2n into lambda by 2। इसको इक्वेशन 9। This gives the condition for the bright fringes at point P when n equal to 0 1 2 3 etc, then the path difference equal to s2p minus s1p will be, n का वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो जो पथ डिफरेंस होगा s2p माइनस s1p क्या हमको मिलेगा, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 लेमडा बाय 2, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 लेमडा बाय 2 सो ऑन। thus the for constructive interference or bright fringes at point P, the path difference between the waves at that point is equal to even multiple of wavelength lambda by 2। lambda by 2 का क्या चाहिए हमको even multiple constructive interference or bright fringes at any point। Now condition for the minimum light intensity is that is for dark fringes। तो cos डेल का वैल्यू -1 होता है मिनिमम, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n + 1 इंटू पाई, इक्वेशन 10। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 10 वी हैव हो जाएगा, इक्वेशन 1 में डेल का वैल्यू क्या था 2 पाई बाय लेमडा इंटू s2p माइनस s1p, और इक्वेशन 10 में क्या है 2n + 1 इंटू पाई, पाई पाई कैंसिल कर दिए तो s2p माइनस s1p क्या निकला 2n + 1 इंटू लेमडा बाय 2, इसको इक्वेशन 11 कर दिए। दिस गिव्स द कंडीशन फॉर द मिनिमम लाइट इंटेंसिटी दैट इज फॉर द डार्क फ्रिंजेस एट एनी पॉइंट when n equal to 0 1 2 3 etc, then the path difference s2p minus s1p will be, when we put the n equal to 0 in equation 11, then the path difference will be lambda by 2, when we put 1 the path difference will be 3 lambda by 2 and so on। Thus the minimum light intensity at any point is produced when the path difference between the waves at that point is odd multiple of half wavelength। जब lambda by 2 का odd multiple मिलेगा तब हमको minimum light intensity at any point will be produced। It is clear from above that the bright and dark fringes are alternatively produced at same distances। alternately produce होता है same distance पे। तो हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा, इसमें हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स y इक्वल टू y1 + y2 था। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या निकालें, इसका वैल्यू हम लोग पुट करके r का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, r स्क्वायर का वैल्यू क्या था a² + 2ab cos डेल प्लस b स्क्वायर, क्योंकि i इक्वल टू r स्क्वायर होता है तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा a² + 2ab cos डेल प्लस b स्क्वायर। हियर i इक्वल टू r स्क्वायर because the intensity at any point of the medium is equal to the square of the amplitudes of vibration of the particle at that point, hence the intensity at point P is what I equal to r square, then I equal to a² + 2ab plus cos डेल plus b square। therefore हम लोग यहाँ पर i का वैल्यू जो होगा ये cos डेल पे डिपेंड करता है। जब cos डेल का वैल्यू जो मिनिमम होगा तो हमको क्या मिलेगा डार्क फ्रिंजेस मिलेगा, जब cos डेल का वैल्यू एकदम मैक्सिमम होगा तो हमको क्या मिलेगा ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन निकाल लेते हैं मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटीज और मिनिमम लाइट इंटेंसिटीज के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस दैट इज विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।